Welcome to We Learn. This is session 8 of Strategic Technology Planning. So in today's session we are going to discuss about the steps of strategic planning. Under this category we are going to discuss about the plans into action. In this we are going to discuss prerequisites of success. After that we are going to discuss about the components of an effective strategic plan. किसी भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई विजन मैटर्स. So these are the topics which we are going to cover in today's session. So first of all, let us start today's session with the topic that is plans into action. So here we are going to discuss about the prerequisites of success. So basically a successful plan is by definition a usable plan, one that informs the organization's activities as well as its long range view. कोई भी जो सक्सेसफुल प्लान है उसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को शो करता है, उसके लॉन्ग रेंज व्यू को शो करता है, या कोई भी ऐसा प्लान जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की को इम्प्रूव करता है, उसकी इफेक्टिवनेस को शो करता है, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कराता है और रिलेवेंस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कराता है, वो कहलाता है सक्सेसफुल प्लान. So for more than 25 years, TCC Group has assisted private, community and corporate foundations, public charities and non-profit organizations throughout the country to develop and design effective strategic plans. अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल लें तो पिछले 25 सालों से ज़्यादा टाइम से जो TCC ग्रुप है वो असिस्ट कर रहा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, कम्युनिटीज़ को, कॉर्पोरेट फाउंडेशंस को, पब्लिक चैरिटीज़ को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को थ्रू आउट द कंट्री. ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है सो एज टू डेवलप एंड डिज़ाइन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान्स. ये इसलिए कैरी आउट किया जा रहा है ताकि एक अच्छे, बेटर और इफेक्टिव प्लान्स डिज़ाइन किए जा सकें, डेवलप किए जा सकें. Now the next thing here is, although the challenges of funding, governing and managing each organization are unique, certain lessons apply across the board. अब challenges को फंड करने के, गवर्न करने के, मैनेज करने के हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट वे होता है, यूनिक वे होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें वहाँ से लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है थ्रू डिफरेंट lessons which are provided by the board. Now the features of a good planning project do not vary regardless of its organizational scope, emphasis or specific issues. अब different features की अगर हम बात करें तो एक जो good planning project है उसके features vary नहीं करते हैं regardless of its organizational scope. अगर organizational scope different भी है तब भी concepts ज़्यादा vary नहीं करते हैं, issues arise नहीं होते हैं. So this paper shares 10 important keys to promote more successful strategic planning. अब यहाँ पर हम और भी ऐसे concepts discuss करेंगे जो कि काफ़ी important role play करते हैं strategic planning में. Now, for purpose of brevity and readability, foundations, public charities and non-profit associations are all referred to in this paper as organizations. अब यहाँ पर जितनी भी पब्लिक चैरिटीज़ हैं, रीडेबिलिटी हैं, फाउंडेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशंस हैं, उनको हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट करेंगे. सो अ क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रास्प ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. एक यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो या फिर चैलेंजेस की बात करें जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोवाइड करती है, उनको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव वे में ग्रास्प किया जाता है. देन a realistic and comprehensive assessment of the organization's strengths and limitations. Realistic और comprehensive assessment जो है किसी भी organizations की, उसकी जो strengths हैं, जो limitations हैं, उनको check out किया जाता है. Then an inclusive approach, एक inclusive approach follow किया जाता है यहाँ पर. After that an empowered planning committee, एक planning committee create की जाती है. Then involvement of senior leadership
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक सीनियर लीडर का होना जरूरी होता है, सो दैट ही कैन गाइड दी सबऑर्डिनेट्स to perform the tasks in a proper manner. Similarly, the next thing is sharing of responsibility by board and staff members. जो भी हम टास्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरप्राइज में, उसको शेयर किया जाता है। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, रोल्स को डिवाइड किया जाता है ताकि बर्डन कम हो जाए। देन द नेक्स्ट वन इज लर्निंग फ्रॉम बेस्ट प्रैक्टिसेस। जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे हम कुछ लर्न करते हैं। सिमिलरली क्लियर प्रायोरिटीज एंड एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। प्रायोरिटीज को क्लियर किया जाता है और प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स दैट कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस वर्क, इंक्लूडिंग प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, फंड-रेजिंग एंड फाइनेंसेस, फैसिलिटीज एंड गवर्नेंस। स्ट्रेटेजिक प्लान्स की अगर बात की जाए तो ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होते हैं जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, लाइक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को इंक्लूड करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको इंक्लूड किया जाता है, मैनेजमेंट के जो भी ऑपरेशंस हैं उन्हें शो किया जाता है, फंड रेजिंग और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें शो किया जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस स्कोप and emphasis, a plan might also describe approaches to enhance marketing, internal and external communications, membership development and administrative systems। अब ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पर, उसके स्कोप के बेसिस पर यहाँ पर एक फोकस किया जाता है। हम अपने जो टास्क हैं उनको प्रॉपर वे में कैरी आउट किया जाता है, ऐसे अप्रोचेस यूज किए जाते हैं जिनसे कि हम मार्केटिंग को इन्हांस कर सकें। इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या नीड के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लान इज इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टॉपिक्स शुड बी प्रेजेंटेड इन एन एक्शन ओरिएंटेड फॉर्मेट। अब ये जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए उनका एक एक्शन ओरिएंटेड फॉर्मेट प्लान क्रिएट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग गुड स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो इंक्लूड करती हैं कुछ पॉइंट्स लाइक अ मिशन स्टेटमेंट, सो अ ब्रीफ एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस। जो मिशन स्टेटमेंट है वो एक ब्रीफ एक्सप्रेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस का। दैट मीन्स जो मिशन स्टेटमेंट है वो शो करती है कि क्या ऑब्जेक्टिव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। देन इट शुड आंसर द क्वेश्चंस व्हाई डू वी एग्जिस्ट। ये आंसर मिलना चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। एंड व्हाट एट द मोस्ट बेसिक लेवल डू वी डू, मतलब सबसे बेसिक लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेन टास्क क्या है। देन द नेक्स्ट थिंग इज अ विजन स्टेटमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। जो विजन स्टेटमेंट है ये डिस्क्राइब करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर स्टेट को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल विजन स्टेटमेंट इज इंटरनली फोकस्ड। जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की विजन स्टेटमेंट है वो इंटरनली फोकस्ड होती है। इट प्रोजेक्ट्स द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्राम। कोई भी जो यहाँ पर प्रोग्राम कैरी आउट किया जाता है उसे फ्यूचर बेसिस पर ही कैरी आउट किया जाता है। बजटिंग या स्टाफिंग साइज यहाँ पर चेकआउट किया जाता है। इट आंसर्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेयर डू वी वांट टू बी। यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट होती है ये शो करती है ऐसे आंसर्स को जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमारे ऐसे क्वेश्चंस की हम कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है। सो अ वैल्यूज स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज बिल्ट एंड दैट गाइड इट्स प्लानिंग, ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स। सो इट आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट डू वी बिलीव इन। यहाँ पर शो किया जाता है, ये ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करता है कि हम क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो ये सारे आंसर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं इन दी कंपोनेंट्स पार्ट। देन कम्स द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो दीज एक्सप्रेस डिजायर्ड आउटकम्स एंड मे बी फोकस्ड ऑन डिस्क्रीट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्रामिंग और इंटरनल ऑपरेशंस। अब यहाँ पर शो किया जाता है किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनको अचीव करने के लिए वहाँ पर प्रोग्रेस को शो किया जाता है कि कहाँ तक हमने अचीव कर लिया है, क्या हमें अचीव करना है, उसको मेजर किया जाता है।
Now let us discuss the next topic here, that is why vision matters. So a strategic plan cannot succeed unless it is derived from a clear vision of what the organization will look like at a specific point in the future. कोई भी जो प्लान है तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक एक क्लियर विजन ना हो कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ पर अपने आप को देखना चाहते हैं फ्यूचर में. सो this vision is encapsulated in a written description of the organization's desired future, stated in terms of budget size, client base, staffing levels and program areas and other parameters. अब यहाँ पर जो विजन स्टेटमेंट है उसके हेल्प से शो किया जाता है कि हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. रिटन डिस्क्रिप्शन को कैरी आउट किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड. जो डिजायर्ड फ्यूचर ऑपरेशंस हैं, जो बजट साइज है, क्लाइंट बेस है, उनको यहाँ पर शो किया जाता है. Now the next thing here is sometimes the vision is so self-evident at the outset of the planning process that the statement virtually writes itself. कभी कभार ये जो विजन होता है इतना सेल्फ एविडेंट होता है कि खुद को ही रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि इट बेसिकली virtually writes itself. Now the next thing here is indeed the effectiveness of many organizations is hampered by conflicting visions और मायोपिक विजन्स डिवाइड ऑफ बिग पिक्चर थिंकिंग. यहाँ पर हम कभी कभार ऐसा भी सोचते हैं कि जो हमारी बिग पिक्चर है उसको हम अवॉइड करें और करंटली आज के टाइम पर फोकस करें और अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज many organizations large and small have board and staff members with strategic planning experience. बहुत सी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हों या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनमें उनके जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है. सो व्हाट दे ऑफन लैक आर ऑब्जेक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड टाइम. लेकिन उनमें जो कमी होती है वो होती है ऑब्जेक्टिविटी की, डिसिप्लिन की और टाइम की. सो अ कंसल्टेंट कैन प्रोवाइड इनवैल्यूएबल असिस्टेंस in designing a strategic planning process that involves all key stakeholder groups in a cost effective way. इसीलिए यहाँ पर कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं. कंसल्टेंट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो एक टेक्निक प्रोवाइड करते हैं, उन्हें एक पाथ शो करते हैं कि किस वे में एक्टिविटीज को कैरी आउट किया जाए इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. So consultants can also obtain sensitive information confidentially and share it in a useful fashion. जो consultants हैं वो जो important information है उसको easily acquire कर सकते हैं और उसे share कर सकते हैं in a useful manner. Now the next thing here is other productive roles for consultants include providing expert advice based on their work with other organizations. जो consultants हैं वो advice भी effective expert advice भी provide करते हैं. Then facilitating consensus among stakeholders with differing points of view, keeping planning committees on track and on schedule, and helping to organize seemingly diffuse or contradictory thoughts and approaches into a sound strategic plan document. यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंसल्टेंट का वो ये भी हो सकता है कि वो जो भी ऑर्गेनाइज करने का काम है एक्टिविटीज को वो परफॉर्म करें, कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स प्रोवाइड करें, डिफरेंट एक्टिविटीज को कैसे कैरी आउट किया जाए, प्रॉपर वे बताएं. सो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थॉट्स. नाउ एट द एंड ऑफ दिस सेशन हियर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. यू कैन ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ. सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन plans into action that means prerequisites of a success. Then the next question is discuss components of an effective strategic plan. So this is the end of today's session. Thank you.